Hello students, welcome in the online classes of biology. So as you all know that nowadays we are discussing about lesson why do we fall ill. In my previous lecture I told you about health and also about different factors which affect our health. And today I am going to tell you some more topics of this chapter. So first of all we will discuss about healthy and disease free person. Some people say that these are the synonyms, healthy and disease free are the same condition, but according to our science, these both conditions are quite different from each other. There are major differences between both these situations. So today we will discuss about this only. Healthy and disease free. Healthy person is the one who is completely fit in all the three states of his life, that means physically, mentally, and also socially. But disease free person is the one who is only physically fit. It is not fit mentally or socially, may or may not be. The second difference is that the healthy person, the fitness of the healthy person depends on all these three factors. But for disease free person, the only factors which affect is the individual itself. All other factors are not necessary to affect this situation of the person. Next thing is that the healthy person is always disease free. The healthy person is always free from diseases. But the disease free person may or may not be healthy. It is not necessary that he is always healthy. It may or may not be healthy. And the last, which is the most important difference, that the healthy person is full of enthusiasm. But the disease free person is may or may not be full of enthusiasm. Enthusiastic. So स्टूडेंट्स हम बात करें हेल्दी और डिसीज फ्री की. वैसे तो देखा जाए तो इन दोनों वर्ड्स को सिनोनिम कहा जाता है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर इन दोनों वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है. वो डिफरेंसेस के सबसे पहली चीज, जो हेल्दी पर्सन है उसको तीनों स्टेट में फिट रहना है, फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है और सोशली भी फिट रहना है. बट डिसीज फ्री पर्सन को सिर्फ और सिर्फ फिजिकली फिट रहना है. ये दोनों से उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता. सेकेंड थिंग, अगर हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उसकी हेल्थ ये तीनों फैक्टर्स पे बेस्ड होती है. बट डिसीज फ्री पर्सन की जो हेल्थ होती है वो सिर्फ डिपेंड होती है उसके खुद पे, उसकी इंडिविजुअलिटी पे. अगर वो खुद फ्री है, वो खुद फ्री ऑफ डिसीजेज है, देन इट इज क्वाइट ओके. थर्ड थिंग कि जो हेल्दी पर्सन है वो हमेशा डिसीज फ्री रहेगा, उसको कभी भी डिसीजेस नहीं होंगी. पर जो डिसीज फ्री पर्सन है वो मे और मे नॉट भी हेल्दी होता है. वो हेल्दी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. दोनों फैक्टर्स उसके लिए कंसीडर होते हैं. सेकेंड थिंग, जो हेल्दी पर्सन होता है वो हमेशा फुल ऑफ एंथुसियाज्म रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, हर चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी रहता है. बट डिसीज फ्री पर्सन के साथ ऐसा जरूरी नहीं है. ही और शी मे और मे नॉट बी एंथुसियास्टिक. हो सकता है कि वो एनर्जेटिक हो और हो सकता है कि वो एनर्जेटिक ना हो. तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो इन दोनों के बीच में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों वर्ड्स को सेम कंसीडर किया नहीं जा सकता. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारा ह्यूमन डिसीजेस. ह्यूमन डिसीजेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे इन डिटेल. So our today's next topic is human diseases. So first thing जो हमें समझने की जरूरत है वो ये कि what are diseases? Diseases is the malfunctioning of our body organs. हमारे कोई body organ में malfunctioning होने लग जाए या हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आने लग जाए, that means कि we are going to be diseased. हम डिसीज की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं. और ये डिसीज डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो उन टाइप्स के बारे में अगर स्टडी करें तो सबसे पहला जो टाइप्स है जो डिपेंड करता है ऑन फैक्टर्स. इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग डिसीज टू टाइप्स की होती है. नंबर फर्स्ट इज infectious and second one is non infectious.
इन्फेक्शियस डिसीजेस हम सबको पता है, इन्फेक्शियस डिसीजेस आर दोज डिसीजेस which are caused by microorganism or which we call pathogens. That pathogens like viruses, bacteria, fungi, all these when cause diseases, it can be transmitted from one person to another by various methods like air, water. Then that condition is known as infectious diseases. When one person can transmit its pathogen from its body to another's body, then that case is known as infectious diseases, and these are caused by pathogens. And the second type is non-infectious diseases. Non-infectious diseases are caused by the malfunctioning of the body. If any of the body organ starts to functioning improperly, then non-infectious diseases occurs, and these diseases are not transmitted from one person to another because these are caused by the malfunctioning of the individual's body itself. So students, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डिसीजेस की. डिसीज क्या होती है? जब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती, फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, माल फंक्शनिंग होने लग जाती है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं डिसीज. सेकेंड थिंग, डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिसीजेस के. टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप डिपेंड करता है फैक्टर्स पे. फैक्टर्स मींस जो उस डिसीज को कॉज कर रहे हैं. तो फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीजेस. इन्फेक्शियस डिसीजेस में क्या होता है कि डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है. क्यों ट्रांसमिट होती है? क्योंकि ये डिसीजेस अकर होती है बिकॉज ऑफ पैथोजेंस. कोई डिसीज कॉज करने वाला पैथोजन, जैसे कि कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की बॉडी पे, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके जब उसको अफेक्ट करता है, तब ये इन्फेक्शियस डिसीज कॉज होती है. और ये पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकता है बाय द मीन्स ऑफ एयर, बाय द मीन्स ऑफ वाटर, बाय द मीन्स ऑफ फूड. ये सारी चीजों से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है, ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है. इस वजह से इन डिसीजेस को हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस. जो सेकेंड काइंड ऑफ डिसीजेस है वो है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कॉज होती है जब इंडिविजुअल की बॉडी का ही कोई ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाता. कोई बॉडी के ऑर्गन में जब प्रॉब्लम आती है तब ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो है वो कॉज होती है. और क्योंकि बॉडी में प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट नहीं होती है, उसी इंडिविजुअल तक ये डिसीज रहती है. इस वजह से हम इन डिसीजेस को बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. एक और काइंड होता है डिसीजेस का जो डिपेंड करता है कि डिसीज कितने टाइम तक बॉडी में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के बेसिस में जो डिसीजेस होती है वो होती है नंबर फर्स्ट एक्यूट एंड नंबर सेकेंड इज क्रॉनिक. एक्यूट डिसीजेस वो डिसीजेस होती है जो हमारी बॉडी में कुछ टाइम के लिए रहती हैं और जिनके सिम्टम्स हमें बहुत अच्छे से अपनी बॉडी में समझ में आते हैं कि हम तुरंत उन्हें क्योर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कफ, स्नीजिंग, फीवर, ये सारी चीजें क्या है कि कुछ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहती है और जैसी ये डिसीजेस हमको होती हैं तुरंत हमको इन डिसीजेस के बारे में पता चल जाता है. इनका जो सिम्टम्स होता है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, समझ में आता है. दैट इज वाई डिसीजेस का सिम्टम्स हमें तुरंत समझ में आ जाता है, हम इसको तुरंत से क्योर कर लेते हैं, डिफरेंट मेडिसिन से तुरंत से हो जाती है. बट क्रॉनिक डिसीजेस आर दोज विच आर present in our body for long time and whose symptoms are not considered in very early stage of the disease. chronic diseases में होता है कि diseases हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम के लिए रहती हैं और इनके सिम्टम्स इतने अच्छे से समझ में नहीं आते कि हम इनको इनके अर्ली स्टेज में ही कोई मेडिसिन से क्योर कर पाए. तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में कि एक्यूट डिसीज जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और जो क्रॉनिक डिसीजेस है ये बॉडी में रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक्यूट डिसीजेस के सिम्टम्स जो हैं वो हमें अर्ली स्टेज पे समझ में आने लग जाते हैं, बट क्रॉनिक डिसीजेस में जो सिम्टम्स होते हैं ये हमें अर्ली स्टेज में समझ में नहीं आते. ये मेजर इन दोनों में डिफरेंस होता है. इसके अलावा एक्यूट डिसीजेस बहुत जल्दी सही हो सकती है, इसके सही होने के चांसेस रहते हैं, बट क्रॉनिक डिसीजेस के सही होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं
एंड इट मे और मे नॉट लीड टू डेथ। इसकी वजह से कई बार डेथ भी अकर बॉडी में हो सकती है। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट हेल्दी एंड डिसीज फ्री डिफरेंस. After that we studied about types of diseases. First one was infectious and non-infectious, which depends upon factors, and the second one is acute and chronic diseases, which depends upon the time period for which they occur. So students, that's all for today. Thank you.